السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج موضوعات بھی ہیں، اور ایک طرف مایوس پینشنرز جن میں نہ صرف نیشنل بینک بلکہ نجی بینکس لائک الائڈ بینک آف پاکستان، اس کے پینشنر جو ہیں وہ کڑ رہے ہیں اور اپنی پینشن کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی سی ایل کے پینشنرز اور امپلائیز اپنی سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ای او بی آئی میں ایک طرف تو ایپوا سرگرم عمل ہے، اس حوالے سے میرے پاس دو اپڈیٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ ایک طرف تو ایپوا حسب روایت اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور ایک بہت بڑے چینل پر آ کر کیا کچھ کہا گیا ہے ایپوا کے نمائندے کی طرف سے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف ایپوا ہی کے لوگوں نے ایپوا بچاؤ تحریک شروع کر دی ہے۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، نان سبسکرائبر سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایپوا کا تو اپنا ایک کردار ہے، اور اس حوالے سے کیا بات چیت کی گئی ہے، کس طرح خوبصورتی سے اپنا ایک موقف پیش کیا گیا ہے، اور وہ کس نے پیش کیا ہے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک طرف تو ای او بی آئی کو پینشنرز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ چھوٹی سی اپڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں مختصراً کر کے۔ سیو ای او بی آئی موومنٹ پاکستان کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی ای او بی آئی بچاؤ تحریک۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا محض ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل متاثرہ ملازمین کی خصوصی کمیٹی کی سفارش پر ای او بی آئی میں غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ 358 جعلی افسران اور ملازمین کو 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر برطرف کیے جانے کے بعد اور ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہونے کے بعد بحال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ راجہ پرویز اشرف سپیکر قومی اسمبلی کے داماد، ناظرین یہ غور کرنے والی بات ہے، راجہ عظیم الحق اور قمر الزمان کے بھتیجے عثمان طاہر قاہرہ اور دیگر ممبران قومی اسمبلی کے قریبی رشتہ داروں کی بحالی ضروری ہے، خواہ ادارہ برباد ہو جائے۔ یہ ایک مفصل ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید بھی آنے والے دنوں میں دیتا رہوں گا، اور باقاعدہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم خدا نہ خواستہ وہ ان ملازمین کے خلاف نہیں ہیں، اگر ان میں کوئی مراد یافتہ بھی ہے یا کوئی سفارشی بھی ہے، اس سے قطع نظر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حقدار کا حق جو ہے وہ غصب نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا موقف ہے۔ اور ای او بی آئی اس وقت اس پوزیشن میں قطعا نہ ہے کہ وہ غیر ضروری بوجھ اور برداشت کر سکے، کیونکہ پہلے ہی اس کے بچاؤ کی تحریک جو ہے وہ شروع ہے۔ اور ناظرین، دوسری تفصیل یہ ہے کہ سید علمدار رضا صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ایپوا کے، انہوں نے معروف چینل بول پر گفتگو کی ہے، اور جس کے ذہن میں کوئی ابہام تھا ای او بی آئی کے بارے میں وہ بھی بتا دیا ہے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا اس چیز کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ چونکہ کاپی رائٹ کا ایک ایشو ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو وہ دکھا تو نہیں سکتے ان کا انٹرویو، لیکن ہم آپ کو ان کی آواز تو بہرحال آڈیو ریکارڈنگ آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔
बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI, इसका मकसद था कि जितने भी तनख्वाहदार तबका होता है उसको सपोर्ट किया जाए, उसके लिए बेनिफिट्स क्रिएट किए जाए, उसके लिए सोर्सेज क्रिएट किए जाए, बहुत सारी सर्विसेज लेकर आई जाए। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बड़े बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। सैयद अलमदार रजा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं EOBI पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। थैंक यू सो वेरी मच सैयद बादशाह, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, EOBI बड़ा अच्छा इदारा समझा जाता था, लेकिन बीच में कुछ खबरों के अंदर कुछ केसेस ऐसे आ गए, कुछ बातें ऐसी आ गई, लोगों का ट्रस्ट कुछ कम हो गया। वेयर डज EOBI स्टैंड टुडे, सैयद बादशाह? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि EOBI जो अदारा कायम हुआ है उसका असल नाम जो अगर पूरी तरीके लिया जाए तो EOBI पेंशनर्स बेनिफिट्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन है। अब आप ये समझ लीजिए कि बेनिफिट्स से मुराद क्या है। बेनिफिट्स से मुराद है कि पेंशनर्स को बहुत सारी बरात दी जाए, लेकिन सिर्फ बेनिफिट एक दिया जा रहा है और वो 48 साल इस अदारे को कायम हो गए। 1976 में अदारा जो है कायम हुआ। जब 1976 में अदारा कायम हुआ पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत, तो जब ये अदारा 1976 में एक्ट के तहत आज इसको कायम हुए 48 साल का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन काबिल अफसोस बात है कि इस वक्त जिस मकसद के लिए काम किया तो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। बेनिफिट से मुराद ये है कि बरात दी जाए, ना कि अभी हमें सिर्फ एक बेनिफिट मिला, एक पेंशन मिल रही है जो कि सिर्फ 8,500 रुपये पर मंथ है। इस तूफानी महंगाई के दौर में क्या आप समझते हैं कि 8,500 में कोई गुजारा कर सकता है? बिजली का बिल भी नहीं भरा जाएगा इतने में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रोटी का बिल नहीं भरा जाएगा, बिजली तो दूर की बात। मैं बताता हूँ कि पहले ये पेंशन जो है ये किस बुनियाद पे होती है। जो पाकिस्तान में इस वक्त लेबर की तनख्वाह है वो थी पहले 13,000 रुपये। उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। अब अभी नए बजट में जो उसका 25,000 रुपये हुआ है, इसका 5% जो है एम्प्लॉयर अदा करता है, 1% जो है वो एम्प्लॉय अदा करता है, 6%। जब ये कानून बना था 1976 में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने उस में फैसला किया था कि 6% एम्प्लॉयर और उसके कंपनी देंगे और 6% जो है ग्रांट म्यूचुअल ग्रांट के तौर पे गवर्नमेंट अदा करेगी। ये बड़ी अच्छी बात थी। और अगर आज वो सिलसिला जारी रहता, जो कि 1995 में ख़त्म कर दिया गया, 1995 के बाद सिर्फ 1 लाख रुपए टोकन के तौर पे EOBI को गवर्नमेंट अदा करती है। 1 लाख रुपए। जी। अब आप ये समझ लीजिए कि कहाँ 6%, यानी कि EOBI एक धोखा साबित हुआ, मतलब ये चूंकि बेवकूफ बनाया गया हमें। हाँ, मैं कहता हूँ कि वर्कर्स को जो है ना, जो पाकिस्तान के इतनी बड़ी कौम है जो 60 साल तक अदारों में काम करती जाके, अदारों के अंदर क्या नाम मशक्कत करती है और 15 साल तक अपनी कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से अदा करती है, उसके साथ ये जुल्म है बहुत बड़ा। किसको फायदा पहुंचा अलमदार साहब? भाई बात यह है कि EOBI इस वक्त 400 अरब रुपए का एसेट मौजूद है उसका। 400 अरब पाकिस्तान का, ये समझ लो कि टॉप मोस्ट अदारा है जिसका पैसा है और एसेट्स हैं, बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट्स हैं जो किराए पे दे रखी हैं। तो आप ये समझ लेंगे 48 साल पहले और अब में कितना फर्क होगा। तो बात ये है कि ये जो पेंशन अदा की जा रही है अब 25,000 हो गई। अब फैसला ये किया गया है कि 5% 25% का 25,000 दिया जाएगा और दिया जाएगा, तो कम से कम थोड़ा सा ये होगा 15,000 रुपए। आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हम EOBI? देखिए, हम बेनिफिट ऐसे ले सकते हैं कि अगर EOBI चाहे, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इसका 2013 में। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगते कैसे हैं? पर्ची कहाँ से आती है? मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ज़ाहिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मामला से अच्छी तरह वाकिफ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चारों सूबों के मजदूरों नुमाइंदे बकौल उनके मजदूरों नुमाइंदे शामिल होते हैं जो कि पेंशन की फलोफल के लिए काम करें। लेकिन आज तुमने बताया कि 48 साल के बाद भी 8,500 पेंशन है और न मेडिकल सहूलत है। उनके अपने एहसास तो बढ़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी यहाँ आया, इस इदारे में आया, वो खूब सैर होकर गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हमें कैसे फायदा कर सकता है? देखिए, हमें फायदा इससे होता है कि अब 500 छोड़ देना, अभी की बात करें, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो 25,000 रुपए एटलीस्ट जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह राइज है वो हमें पेंशन के तौर पर देना शुरू करे। और दूसरा अहम मुतालबा जो हमारा अरबाब इख्तियार से है वो ये है कि भाई 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं 30% के अलावा। इस वक्त भी हमारे समझ लें कि 30% लोग कैंसर में और मौली बीमारी में मुब्तला है, उनको इलाज कराने के बाद पैसे नहीं। इस इदारे को प्राइवेटाइज करने की बात नहीं होती, स्टील मिल की होती है, दूसरों की होती है, 400 अरब है, इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? असल ये है खुद मुख्तार अदारा, इसके जो असल मानी है, जो असल इसके कर्ता होता है वो हम पेंशनर्स हैं।
यानी हमारी कंट्रीब्यूशन पेंशनर्स का बुरा हाल है तो इदारे का अच्छा हाल कैसे है? पेंशन तो बुरा हाल किया गया है, आवाम का बुरा हाल है तो पेंशन का बुरा हाल किया वेरी हुआ है। गुड। देखिए मैं बताऊं आपको, पिछली गवर्नमेंट में हमारी पेंशन 8,500 से ही कम थी, 5,000 समथिंग थी। ये तो मैं कहना चाहूंगा कि जुल्फिकार बुखारी साहब जो जिसके अंडर में ये हमारा धारा आता है, कंट्रोल है ये ह्यूमन रिसोर्सेज आता था, नहीं अभी भी उसी कंट्रोल में, जब वजारत तो वही है ना, लेकिन उसके मुशीर जो थे वज़ीर आला के जुल्फिकार बुखारी साहब थे, उनकी मेहरबानी से यकम मई को उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा के 8,500 कर दिया, वरना ये तो 5,500 था। 5,500 अल्लाह रे। अभी तक इस गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं सोचा कि बेनिफिट्स की बात तो करते हैं आप, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था। नाज़रीन, आपने सुना, बड़े मौसर अंदाज में उन्होंने अपना बयान किया है, लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये इनका मुतालबा बिल्कुल सही है कि कंट्रीब्यूशन बढ़ाई जाए और इस कंट्रीब्यूशन में इक्वल कंट्रीब्यूशन हो और वो वेरी करती जाए। इसके साथ साथ जो मिनिमम हर साल जो मिनिमम सैलरी जो बढ़ती है उसी तनासब से बेहतर एवरेज के साथ, यानी बेहतर कंट्रीब्यूशन के साथ इनका जो है ना ये होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यही है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस नॉट हिडन, यानी कोई भी ये अमर मख्फी नहीं है कि सियासतदानों ने इस अदारे को लूटा खसूटा है। और अगर कंट्रीब्यूशन के कवानीन सख्त किए जाएं तो बहुत सारे मज़दूर जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें अपने हकूक़ का भी नहीं पता होता। और यहाँ मैं ये बताता जाऊँ कि लीगल एस्पेक्ट 2003 में भी हमने ये टॉपिक लेके आना है, वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब वीडियो चूँकि तवील हो गई है, बाकी मामलात इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में। तारिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।